الجنة تحت أقدام الأمهات. Paradise lies under the feet of mother. जन्नत माँ के कदमों के नीचे है. अनुभवी शिक्षक तालीम याफ्ता उस्ताद की निगरानी में आपके बच्चों को दी जा रही है बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा. जी हाँ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. And there is no one equal to him. اور اس کے برابر کوئی نہیں. صدق اللہ العظیم. مولانا عبدل رزاق اسلامک اردو انگلش اسکول مسورہ بازار پر ہے. نرسری سے لے کر 8 تک CBSE پیٹرن پر آدھارت اور اسلامک ماحول میں شکشا کو ایجوکیشن کو دیا جا رہا ہے. کیا آپ سفید داغ سے پریشان ہیں؟ اب چنتا چھوڑیے، موتیہاری میں لیوکو کلینک لے کر آیا ہے سفید داغ کا ایڈوانس ٹیکنک اور نئی دواؤں دوارا اثردار علاج. اگر داغ زیادہ پھیلا نہیں ہے تو 1 سے 2 ہفتوں میں ہی فرق محسوس کریں، اور زیادہ پھیلے ہوئے داغ میں بھی نوینتم ریسرچ آدھارت علاج سے کچھ ہی مہینوں میں بہترین پرینام. 20 वर्षों के सफल अनुभव के साथ डॉक्टर इरशाद अहमद कर रहे हैं सफेद दाग का जड़ से इलाज. विशेषज्ञ परामर्श और सटीक उपचार के लिए आज ही मिलें. समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक. स्थान मोतिहारी बड़ा बरियारपुर मदरसा से 100 कदम उत्तर, सिर्फ मंगलवार. واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ایک ہاتھ میں سائنس تو دوسرے ہاتھ میں قرآن کو رکھنے کا ایک بہترین پریاس کیا گیا ہے. جنت میں سب سے پہلا دروازہ کس نبی کے لیے کھلے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ کون ایسے نبی ہے جنہوں نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ کون ایسے صحابی ہے جنہیں اسد اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت علی. شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ ابلیس. حضرت مولانا محب اللہ قاسمی کے زیر نگرانی میں یہ اسکول چل رہا ہے. اردو انگلش حفظ قرآن، ساتھ ہی نماز کی پابندی، عملی مشق، دعاؤں کا پٹھن پاٹھن کے لیے یاتایات کی سویدھا. اسمبلی کا ٹائم ہے. بچوں کے دوارا اینتھم کیا گیا ہے. یہاں کے بچوں سے بات کریں گے، یہاں کے ٹیچر سے بات کریں گے، اساتذہ سے بات کریں گے، یہاں کی فیکلٹی سے بات کریں گے. تو علاقے کے لیے خوشخبری ہے. ایک چھت میں دینی ماحول میں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا ایک بہترین پریاس MAR اسلامک اردو انگلش اسکول نے کیا. کیا نام ہے آپ کا؟ حفیظ اللہ. حفیظ اللہ. کتنے کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 3 کلاس. 3 کلاس میں ہیں. قرآن یاد ہے آپ کو؟ جی. تلاوت کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. کیا نام ہے آپ کا؟ الفیہ پروین. حدیث یاد ہے؟ جی. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحیاء صعبۃ من الایمان. Modesty is the part of faith. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. عافیہ پروین کتنے کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 6 کلاس. 6 کلاس میں ہو. قرآن کی تلاوت کریے اردو اور انگلش ترجمہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. I seek Allah protection from Satan the curse. میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مدعو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو اللہ احد. Say he is Allah is one and only. آپ کہہ دیتے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ the everlasting refuge. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. He is not begotten, he is not begotten. نہ وہ جنا نہ وہ جنا گیا. کتنے کلاس میں ہے؟ گولڈن سینگ سنائیے. نمبر 1 honesty is the best policy. ایمانداری سب سے اچھی چیز ہے. نمبر 2 every slot is brave. ہر قطعے کو اپنی آواز سنریلی لگتی ہے. نمبر 3 all are not alike. پانچوں بھی برابر نہیں ہوتی. نمبر 4 truth is bitter. سچ بات کبھی معلوم ہوتی ہے. What's your name? My name is Abdul Rafi Ahmad. What's your father's name? My father's name is Amir Nazib Rahman. Where do you live? I live in Chandpur. Tell me something you're about. My name is Amir Rafi Ahmad. My father's name is Amir Nazib Rahman. I am from Chandpur.
I read in Indian school में सौरा बाजार. देखिए एक छोटा बच्चा है इस स्कूल में पढ़ाई करता है, क्या नाम है? अब्दुल बिलाल. अब्दुल बिलाल। कितने क्लास में है आप? 2. 2 में पढ़ते हैं। कोई कुरान की सूरत याद है? जी. तर्जमा के साथ पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. नंबर 1 या अय्युहल्लज़ीना आमनु बिल्लाह. ए वो लोग जो अल्लाह पर ईमान ला चुके हो अल्लाह पर ईमान लाओ. नंबर 2 अकीमुस्सलाह. नमाज कायम करो. नंबर 3 और ज़कात अदा करो. इनका कौन ऐसा आलिम है जिन्हें जनाजा पढ़ाने की इजाज़त दी गई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में कितनी सूरह हैं? 114। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह का नाम क्या है? सूरह कौसर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम है? हज़रत उमैया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 2। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों का नाम क्या था? हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। क्या नाम है आपका? मंतशा खातून. मंतशा खातून। कितनी क्लास में पढ़ती हैं? 4. 4 क्लास में है। हदीस याद है? जी. तर्जमा के साथ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हदीस नंबर 1 अल इल्मु नूरुन. इल्म रोशनी है. हदीस नंबर 2 अस्सब्रु जियाउन. सब्र उजाला है. कि मेरे स्कूल का मुकाबला दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से यानी दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो, शायद कोई इदारा मुकाबला आज के डेट तक नहीं किया है, न कर सकता है. Education is the most powerful weapon that you can use to change the world. अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर वक्त में इस इदारे ने न सिर्फ तालीमी मैदान में खवा दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो, बल्कि हुस्न अखलाक और इस्लामी तहदीब की भी एक बेहतरीन मिसाल कायम किया है. और इस इदारे का एक अहम शोबा कोचिंग सेंटर भी है, जिसके अंदर इंटर, मैट्रिक, 9th और दीगर क्लास बिहार बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक माहिर और एक्सपर्ट टीचर्स के जरिए तमाम सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है. ये 250-300 बच्चे और बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके ईमान की हिफाजत तो हमारे जरिए हो गई. ये सबसे बड़ी खुशी की बात है. MAR इस्लामिक उर्दू इंग्लिश स्कूल बुनियादी सुविधाओं के साथ बच्चे और बच्चियों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का खुसूसी तवज्जो दिया जा रहा है. हमारे साथ देख सकते हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल हजरत मौलाना ज़बीहुल्लाह कासमी है और ज़ीर निगरां देख सकते हैं हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह कासमी है, जिन्होंने यहाँ के बच्चे और बच्चियों के लिए दूर तक सोचा. ग्रामीण इलाके में एक ऐसी शिक्षा फराहम की, एक ऐसी तालीम की बुनियाद डाली जहाँ से बच्चे बेहतर कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को संवार रहे हैं. और इस स्कूल में शोबा तहफीजुल कुरान की भी शुरुआत कर दी गई है. जो बच्चे कुरान हिफ्ज करना चाहते हैं उसके लिए भी खास एहतमाम कर दिया गया है. हजरत तहफीजुल कुरान मां असरी तालीम के साथ आपकी शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? First of all, I thank you from the bottom of heart for coming here in spite of so busyness. सबसे पहले मैं दिल के गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने तमाम तर मसरूफियात व मशगूलियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए. मैं अपनी बात का आगाज़ इंग्लिश के इस वर्ड से करना चाहता हूँ. एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन दैट यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड. कि तालीम वो रोशन हथियार है जिससे जहालत के अंधेरे मिटते हैं और दुनिया संवरती है. इसी मकसद के तहत 2020 में इस इदारे का क़याम अमल में आया. हज़रत मौलाना मुहिबुल्लाह साहब कासमी की सरपरस्ती ने इस इदारे को तरक्की की नई मंजिलों तक पहुंचाया है. इसी कामयाब सफर को आगे बढ़ाते हुए अब इदारा में शोबे तहफीजुल कुरान मां असरी तालीम का आगाज किया जा रहा है, जो कि एक निहायत मुबारक और अहम कदम है. इस शोबे का मकसद बच्चों को कुरान मजीद की हिफ्ज व तजवीद की दौलत से मालामाल करने के साथ साथ जदीद असरी उलूम से आरास्ता करना है. क्या मिशन बनाया था 6 साल पहले आपने इसकी शुरुआत करी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने वक्त को हम लोगों के लिए कुछ दिया. आपने सवाल किया कि किस मकसद से और क्या सोचकर आपने शुरू किया, तो मैं भी अब तक सोचता हूँ, बार बार सोचता हूँ कि हदीस बिन नेमत के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद मुझे पता भी नहीं चला कि इतने कम दिनों के अंदर हम कहाँ पहुँच गए.
और किस वजह से अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पर ये इदारा का क़याम हुआ, वो इस इलाके के बहुत बड़े आलिम थे, जो चैनपुर हाई स्कूल के टीचर थे, जो हजारों की तादाद में इलाके में उनके शागिर्द लोग आज भी दीनी मिजाज लिए हुए मौजूद हैं। और ये मिसौरा चांद ईदगाह के इमाम भी थे। उन्होंने स्कूल में रहते हुए हम 4 भाइयों को दारुल से फारिग कराया, दीनी तालीम से आरास्ता कराया। उन्होंने अपने दिल से कैसी कैसी दुआ की थी कि 3 पुश्त तक ये सिलसिला, 4था पुश्त भी जो है, पुश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम से लगे हुए हैं। बड़े लड़के कारी हाफिज ज़बीहुल्लाह साहब कासमी, जो इंग्लिश के स्पोकन भी किए हुए हैं मरकजुल मारूफ से, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश पर इनका जो है, इनकी पकड़ भी अच्छी है। और जिन्होंने मशवरा दिया कि मैं स्कूल चलाना चाहता हूं, जबकि हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा, लेकिन इनके मशवरा की वजह से मैंने इनके मशवरा को इसलिए कबूल किया कि हमने अपने बड़ों से मशवरा किया कि बच्चे स्कूल खोलना चाहते हैं, मैं क्या करूं। तो हमारे बड़ों ने, उस्तादों ने मशवरा दिया कि बहुत अच्छी राय है, मदरसा न खोल करके आप स्कूल खोलें, दीनी और इस्लाही स्कूल खोलें, इस्लामिक स्कूल खोलें। चूंकि बच्चों का रुझान और गार्जियन का रुझान स्कूलों की तरफ है, तो चलो उधर की जिधर की हवा हो। कि यहाँ के असातिज़ा हर सब्जेक्ट को बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं। और खास तौर पर जब मैं देखता हूँ कि कारी साहब तजवीज़ के साथ बच्चों को और बच्चियों को कुरान का मश्क करा रहे हैं, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद हम कामयाब हो गए। मैंने इसी मकसद से स्कूल का क़याम किया था। मैं तिजारत और बिजनेस समझ करके स्कूल का क़याम मैंने अमल में नहीं लाया। बच्चे और बच्चियां 2-4 साल पढ़ करके नाकाम हो करके यहाँ आते हैं, और उनके गार्जियन बजरते ये कहते हैं कि मैंने बहुत रुपया खर्च कर दिया, लेकिन जो कामयाबी आपके स्कूल में मुझे मिली, बड़े स्कूलों में मुझे ये कामयाबी नहीं मिली। और ज़बीहुल्लाह साहब का जो प्रिंसिपल है, उनकी मेहनत देख करके था मुझे रश्क आता है। इन्होंने चंद महीनों तक काठमांडू में भी जो है इंग्लिश की तालीम दी, मोतिहारी में भी तालीम दी है, ढाके स्कूल में भी तालीम दी है। लिहाजा इनको जो इंग्लिश पर जो पकड़ है और स्कूल चलाने का जो सलीका है, शायद किसी प्रिंसिपल के अंदर ये बात हो। जो मालदार हैं, मदरसों के अंदर सदाकत और खैरात के खानों को खिलाना पसंद नहीं करते हैं, होना भी नहीं चाहिए। तो वैसे गार्जियन हजरात जो अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराना चाहते हैं, तो उनको लिए मैंने हॉस्टल का इंतजाम किया है कि ऐसे बच्चों को अच्छे माहौल में अच्छा खाना और अच्छी रिहाइश देते हुए हिफ्ज़ कुरान कराएंगे। और साथ साथ जो है हालात की वजह से जो है असरी तालीम भी देंगे उनको, वस्तानिया, फौखानिया और मौलवी, मैट्रिक, इंटर की तैयारी भी साथ कराएंगे। इस इदारे के बारे में तो मैंने सुना, बड़ा अच्छा है, देखा भी है, और बार बार मैं यहाँ आता भी रहता हूँ। इदारे में बड़ी अच्छी तालीम हो रही है, और खुशी की बात तो ये है कि ऐसा इदारा जहाँ पर दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी होती हो। न मदरसों में ऐसा इंतज़ाम है, न स्कूलों में ऐसा इंतज़ाम है। ये वाहिद इदारा है जहाँ पर दोनों इंतज़ाम चल रहा है। माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है आवाम के लिए भी और इदारे के लिए भी। और कल ये मुबारकबाद है इस इदारे के मुंतज़मीन जो इस तरह लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे इदारे को मुआयने करने के दिया। तो मुझे बहुत कलक होता है कि ऐसे गार्जियन 10,000, 20,000, 5,000 महीना खर्च करते हैं, लेकिन ये बुनियादी कलमा भी ईमान जिसके अंदर नहीं है। इसलिए हमारे दिल में ये ख्याल आया है कि नहीं कि ऐसा इदारा कायम हो, अच्छी तरबियत दे और चहल हदीस, दुआ, दरूद, कुरान की बेहतरीन तजवीद के साथ कुरान की तालीम दे, ताकि उनके गार्जियन का जो पैसा लग रहा है वो सही जगह पर खर्च हो।